Hello students. So today we are going to start with a new lesson, that is two stories about flying. Okay, so the first one is his first flight and second is black aeroplane. So let's start with the straight away with the chapter. Okay, before you read, since the earliest time human have dreamt of conquering the skies. Here are the two stories about flying. So conquering means to have victory over, vijay प्राप्त करना. Okay, then a young seagull is afraid to fly. How does he conquer his fear? So young seagulls, you must have seen a seagull. You can see in the here in the picture you can see seagull. So she wanted to fly, but she's afraid. Here you can see the seagull. It's sitting, and it is afraid to fly. What happens then? Let's just see. Okay, let's begin the chapter. The young seagull was alone on his ledge. What do you mean by ledge? Alone on his ledge means ledge is a narrow horizontal cliff. A narrow horizontal cliff. Here in the picture you can see a narrow horizontal cliff. Horizontal cliff, एक चोटी जिसको बोलते हैं ना, चट्टान का एक तिरछा भाग. ये देख रहे हैं आप, चट्टान का तिरछा भाग, इसको हम लोग बोलते हैं. ओके, here you can see this is the cliff. Okay, this is called a yes, this is called a ledge. Now you understand. His two brothers and sister has already flown away. So all brothers and sister, they are already flown away. Fly ka past tense ka fly, flew, flown. This is the third form. Had already. So past perfect tense. You can see here had plus third form of the verb. The day before he had been afraid to fly with them. Day before only he had been afraid to fly with them. So he was afraid to fly with them. Then what happened? So you see the past perfect and had plus verb third form. Had plus third form of the verb. This shows the past perfect tense. Okay. He had been afraid to fly with them. So he had been afraid to fly with them. So what happened then? Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, had attempted to flap. So you see that he had run forward to the brink of the ledge. Brink means किनारा, side पे. Brink मतलब क्या होता है? बिल्कुल corner. Brink. What is the word for another word for brink? Corner. Okay. So here you can see the brink of the ledge. Ledge already I have told you. चट्टान का बिल्कुल तिरछा हिस्सा जो होता है. And attempted to flap his wings, he became afraid. So whenever he tried to flap his wings, flap माने to move, flap माने to move his wings. So whenever he tried to move his wing, he was afraid. The great expanse of sea means फैलावट, जो sea फैली हुई थी, stretched down beneath. तो नीचे आप देख रहे हैं कि उस चित्र में आपने देखा था कि पूरी सी थी. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही हैज स्लेप्ट एट नाइट. तो रात भर वो एक किनारे में, उस चट्टान के किनारे में घुस के सोता रहा. और अभी उसको डर लग रहा है कि वो नीचे अगर वो फ्लाई करेगा तो उसके विंग्स, दे विल नॉट सपोर्ट हिम, दे विल नॉट हेल्प हिम. सपोर्ट मीन्स हेल्प. द विंग्स विल नॉट हेल्प हिम, एंड वॉट ही विल डू, ही विल ड्राउन इन द वाटर. ही विल स्ट्रेट अवे गो इन टू द ओशन एंड ही विल ड्राउन. वो वहाँ जाके डूब जाएगा. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड लिटिल सिस्टर हुज विंग वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग एंड फ्लू अवे. उसने देखा, लेकिन उसने देखा भी कि उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर उन्होंने किया. दे हैव ऑलरेडी फ्लोन. इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव सन. ही फेल टू मस्टर अप कर. मस्टर, व्हाट डू यू मीन बाय मस्टर? मस्टर मीन्स गैदर, इकट्ठा करना. मस्टर, गैदर अप करेज. करेज मीन्स साहस. टू टेक अप दैट प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट. प्लंज माने क्या होता है? टू जंप. प्लंज माने टू जंप. तो उसमें वो इतना था कि वो प्लंज नहीं ले सकते. कैन नॉट जंप विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट. डेस्परेट, व्हाट डू यू मीन बाय डेस्परेट? डिसअपॉइंट, है ना. ही वॉज होपलेस, ही वॉज डिसअपॉइंट. ही गैदर एंड हिज फादर एंड मदर मूव्ड हैड कम अराउंड. उसके मदर और फादर अराउंड आ चुके थे. तो आप ये देख रहे हैं पूरा लेसन ये पास्ट परफेक्ट टेंस में डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि ये सब घटनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं. ठीक है ना. आपको मैंने टेंसेज में पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा पढ़ाया है. ओके, नाउ आगे देखते हैं क्या हुआ. कॉलिंग
टू हिम श्रीली, उसके माता पिता जो आ रहे हैं, एंड दे आर कॉलिंग टू हिम श्रीली। श्रीली मीन्स चिल्ला चिल्ला कर उसको श्रिल कर रहे हैं। अनप्लेजेंट, श्रिल माने क्या होता है? अनप्लेजेंट साउंड। श्रिल मीन्स अनप्लेजेंट साउंड। तो उसके पेरेंट्स जो है वो अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट कर रहे हैं। अनप्लेजेंट, ठीक है, अनप्लेजेंट साउंड यानी जो कानों को अच्छी नहीं लगती उसको हम लोग बोलते हैं अनप्लेजेंट, ठीक है। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग माने क्या होता है कि वो उसको बार बार उसके स्कोल्ड कर रहे हैं। अपब्रेडिंग मीन्स क्या होता है? स्कोल्ड करना। उसके पेरेंट्स आ रहे हैं और वो उसको बार बार आके स्कोल्ड कर रहे हैं। COLD, स्कोल्ड माने डांटना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, थ्रेटनिंग माने क्या होता है? उसको एक वार्निंग दे रहे हैं। दे आर गिविंग अ थ्रेट, वार्निंग, उसको बार बार एक वार्निंग दे रहे हैं। क्या वार्निंग दे रहे हैं बस उसको, छोटे से सीगल को? टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मीन्स भूखों मरना, उसको वो खाना नहीं देंगे। इट विल स्टार्व, डाई ऑफ हंगर। स्टार्व माने क्या होता है? डाई ऑफ हंगर। इसके वर्ड मीनिंग्स आप लोग जरूर नोट करिएगा क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव टू कम टू एक्सप्लेन द लेसन, और कॉम्प्रीहेंशन में भी ये आ जाते हैं। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। तो देखा आपने, ये सारी घटना 24 आवर्स अगो की हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस इसीलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये घटनाएं होके कंप्लीट हो चुकी हैं। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। दैट डे बिफोर ऑल डे ही लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिम, हिज ब्रदर एंड सिस्टर परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर अपने पेरेंट्स के संग अपनी आर्ट को परफेक्ट कर रहे हैं, फ्लाइंग की आर्ट को परफेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और वो उसको स्किम करना सिखा रहे हैं वेव्स को। स्किम माने क्या होता है? मूविंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर। स्किम यानी कि पानी के ऊपर तैरना, मूविंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो उसको स्किम करना सिखा रहे हैं उसके माँ बाप और उसके भाई बहनों को, ठीक है। ही हैड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश मछली को कैसे पकड़ना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हरिंग, हरिंग एक टाइप की फिश होती है। उसने देखा कि उसके भाई ने एक मछली को पकड़ा। एंड डिवोर, डिवोर माने उसको निगल गया। डिवोर माने क्या होता है? किसी चीज़ को बिल्कुल टू ईट समथिंग क्विकली। डिवोर का मतलब क्या होता है? टू ईट समथिंग क्विकली। तो आप देख रहे हैं डिवोर का मतलब टू ईट समथिंग क्विकली, इसको आप नोट कर लीजिए। टू ईट समथिंग क्विकली, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी खाना। ओके। स्टैंडिंग वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल राउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, उसके जब वो उसके भाई ने उस हरिंग को पकड़ा और जल्दी से खा लिया तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे प्राउड कैकल कर रहे हैं। कैकल माने क्या होता है? एक साउंड क्रिएट करना, अनप्लेजेंट कर्कश आवाज़। उनकी जो अब वॉइस है जैसी भी है, कर्कश है ना, अनप्लेजेंट साउंड को वो क्रिएट कर रहे हैं, उसके खुश हो रहे हैं, ठीक है। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और उसके पेरेंट्स जो हैं वो लोग सब मिलकर उसको चिढ़ा रहे हैं। उसके सामने जो सामने वाली चोटी जो छोटा सा एक चट्टान टाइप की है उसके ऊपर बैठ के वो लोग सब लोग उसको प्लेटो क्या होता है? अ लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेटो क्या होता है? अ लार्ज एरिया ऑफ हाई फ्लैट लैंड। ऐसे फ्लैट लैंड रहता है, देखो आप ये देख रहे हैं सब प्लेटोज हैं, ये फ्लैट लैंड है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये प्लेटो बना हुआ है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें, ये देखिए ये बने हुए हैं, ये फ्लैट लैंड्स, ये देखिए ये है ना, ये प्लेटोज़ हैं, ये छोटे छोटे प्लेटोज़ हैं, ये देखिए ये प्लेटोज़ हैं। तो यहाँ पर उसके भाई बहन बैठे हुए हैं और ये देखिए आप उसको स्किम करना सिखा रहे हैं, पानी की सतह पर तैरना। ये उसकी मम्मी पापा भाई बहन सब हैं इस चित्र में। और आप देख रहे हैं ये वो है जो वो डर रहा है, ही इज़ अफ्रेड। और वो ये ब्रिंक है, इसका किनारा है, वो किनारे पे नहीं आता, वो रात भर यहाँ छुप कर कोने में सोता रहा। तो ये आपने पूरी कहानी समझ ली उस सीगल की। और एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड ऑन द बिग प्लेटो, और उसको टॉन्ट कर रहे हैं। टॉन्ट माने क्या होता है? टू कमेंट। टॉन्ट माने क्या होता है? टू कमेंट, उसको उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि वो कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज मीन्स कि वो कितना डरपोक है, ही इज़ अफ्रेड, कायरता जिसको बोलते हैं ना कि लैक ऑफ करेज। तो कॉवर्डाइज के लिए दूसरा वर्ड क्या आप लिख सकते हैं? लैक ऑफ करेज। ओके।
द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज धीमे धीमे असेंड कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही है, धीमे धीमे नीचे से ऊपर जा रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, ब्लेजिंग माने क्या होता है कि वो उस पर बर्निंग, ब्लेजिंग माने क्या होता है बर्निंग, तो वो बर्निंग कर रहा है किस चीज़ को, जहाँ पर वो बैठा है। ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, और उसने एक रात से कुछ खाया नहीं है तो उसको ज़्यादा गर्मी लग रही है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट to the brink of the ledge and standing on one leg on the other leg hidden under his wing, और वो एक टांग पे खड़ा होकर दूसरी टांग को उसने छुपा के ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी आँख को भी बंद कर लिया, देन दी अदर। तो आप देख रहे हैं कि पूरी उसकी एक्टिंग हो रही है, वो अपनी एक टांग को उठा के नीचे देखो, एक टांग को उठाए हुए है और उसने अपने उसको ऐसे छुपा के ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वो सो रहा है, ठीक है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और वो ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि जैसे कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसका कोई भी नोटिस नहीं लिया। ओके, ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड, उसने देखा कि उसके दोनों भाई एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो वही चट्टान पे, डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक, अब वो थक चुके हैं शिकार कर करके, तो वो लोग सो रहे हैं अपने गर्दन को छुपा कर। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग, केवल उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, वो छोटे से प्लेटो के ऊपर खड़ी हुई है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड मीन मूविंग फॉरवर्ड। नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और उसकी माँ ने क्या किया कि उसने अपने पैर में एक मछली के टुकड़ा मछली रखी हुई है, और उस मछली को उसने ऐसे करके मछली को फाड़ा। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज बीक ऑन द रैक, और फिर उसने अपनी चोंच को पत्थर पे रगड़ा, जैसे कि वो शार्पन कर रही है, अपनी चोंच को शार्पन कर रही है मछली को फाड़ के, और उसने उसको चोंच को ऐसे रगड़ा। तो ऐसे उसको ये सब सीन देखकर उसको क्या लग रहा होगा, ही वॉज वेरी हंग्री, वो पूरी रात से भूखा है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, उसकी माँ ये जानबूझ के कर रही है, जानबूझ की माँ उसको दिखाने के लिए उसकी माँ ने ये सब किया, उसके सामने मछली को फाड़ा और फिर अपनी चोंच को रगड़ रही है ना। तो ये सब ये सब चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि उसको वो मोटिवेट कर रही है, भूख लग रही है उसको, और वो उसको बता रही है कि देखो मेरे पास खाना है। तो फिर उसकी माँ क्या करती है, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वो अपनी मदर को चिल्ला चिल्ला के अपनी भाषा में बोल रहा है कि मेरे को खाना दो। उसकी माँ ने जवाब दिया, गाओ कूल आ, शी स्क्रीम्ड बैक, उसकी माँ ने पीछे डेरिसिवली उसको जवाब दिया। डेरिसिवली माने क्या होता है कि किसी चीज़ को बिल्कुल से मॉकिंगली, मजाक बनाते हुए। डेरिसिवली माने मॉकिंगली, यानी उसकी माँ ने उसका मजाक बनाते हुए जैसे उसको रिफ्यूज़ किया, मॉकिंगली, है ना। बट ही केप्ट कॉलिंग हिम प्लेंटिवली, लेकिन वो अपनी माँ को प्लेंटिवली कहता रहा। प्लेंटिवली माने सॉरोफुली, यानी दुखी होकर अपनी माँ को पुकारता रहा, वो दुखी होकर अपनी माँ को पुकारता ही रहा। एंड अ मिनट और सो शी अटर्ड अ जॉयफुल फीलिंग, तभी वो एकदम से खुश हो गया। ही अटर्ड, एकदम से वो खुश हो गया, क्यों? हर मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, उसने देखा कि उसकी माँ मुंह में मछली को लेकर उसकी तरफ को ही उड़ती आ रही है। अब सोचिए आप वो कितना खुश हो गया। ही लीन्ड आउट, लीन्ड माने पूरी तरह से बाहर की तरफ को लटक गया। ये देखिए आप इसमें फ़ोटो में आप देख सकते हैं इन द पिक्चर कि वो कैसे लीन आउट करा है, ये देखो आप, है ना, कैसे वो लीन आउट कर रहा है। ये उसकी माँ आ रही है, उसकी माँ के मुंह में मछली है, और ये छोटे छोटे प्लेटोज़ बने हुए हैं, यहाँ से कोई भी उसके भाई बहन उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, केवल उसकी माँ ही देख रही थी, और वो मुंह में मछली लेकर उसकी तरफ को आ रही है, ठीक। तो वो बहुत खुश हो गया, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ये सीन आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। अब आगे पढ़ते हैं। ईगली टैपिंग द rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across, तो उसकी माँ ने क्या किया, वो अपनी फीट को टैप करने लगा। टैप माने ऐसे ऐसे फीट को ऊपर बार बार पटकना, फीट है ना। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही उसकी माँ उसके बगल से निकली तो उसने सोचा कि मैं अपनी माँ के बिल्कुल पास में आ जाऊँ, तो बिल्कुल टैप करता हुआ, टैप माने फीट को बार बार उस चीज़ को बजाना, पैर को बजाता हुआ बिल्कुल वो कोने में आके लटक गया। फिर क्या हुआ, बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, लेकिन जैसे ही उसकी माँ बिल्कुल उसके ऑपोजिट आई वो हॉल्ट कर गई। हॉल्ट माने स्टॉप, उसकी माँ ने क्या किया, वहाँ पे स्टॉप कर दिया, हॉल्ट। देन
विंग्स मोशनलेस, मोशनलेस विदाउट मूवमेंट, उसके विंग्स बिल्कुल मोशनलेस हो गए. द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच और उसकी चोंच में थोड़ा सा ही अंतर रह गया था, और थोड़ा सा उसकी माँ और आगे आती तो उसकी माँ से वो मछली लेके खा लेता. ही वेटेड अ मोमेंट, लेकिन उसने वहाँ वेट किया इन सरप्राइज, उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या हुआ, माँ रुक क्यों गई. वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर हर, एंड देन मैडेंड बाई हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, लेकिन उसको बहुत तेज भूख लगी थी, वो वेट नहीं कर सकता था, उसने अपनी माँ के मुंह की तरफ को डाइव किया, है ना. डाइव माने क्या होता है, एकदम से उसने अपने आप को छोड़ दिया उसकी माँ के मुंह की तरफ. ही डाइव्ड एट द फिश. With a loud scream, he fell outward and downward into the sea. उसको केवल अपनी माँ का मुंह दिखाई दे रहा था जिसमें मछली है, उसको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि अगर वो डाइव कर देगा तो माँ का मुंह तो जो है वो तो है ही, लेकिन वो सीधा समुद्र में नीचे जाएगा. और जैसे ही ऐसा ही हुआ तो उसने ज़ोर से चीखा, वो स्क्रीम किया, क्योंकि वो आउटवर्ड माने बाहर की तरफ को, और डाउनवर्ड माने नीचे की तरफ को. तो ये क्लिफ पर वो था, तो वहाँ से आउटवर्ड और डाउनवर्ड वो नीचे की तरफ को जाने लगा स्पेस में, यानी कुछ नहीं था वहाँ पे, हवाई थी, तो वो एकदम नीचे जाने लगा. देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, और तभी उसको एक मॉन्स्टर्स टेरर, कैसा टेरर माने डर, फियर, टेरर माने क्या होता है, फियर. ले मॉन्स्टर क्या होता है, राक्षस, तो मॉन्स्टर से ही वर्ड बना है मॉन्स्ट्रस, ठीक है. तो ऐसा राक्षसी डर ने उसको, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा डर ने उसको क्या किया, सीज किया. सीज माने क्या होता है, उसको घेर लिया. तो यहाँ पर मॉन्स्टर्स का मतलब आप लिख सकते हैं कि ह्यूज. मॉन्स्टर्स मतलब ह्यूज, HUGE, ह्यूज. और सीज माने कैप्चर, सीज माने क्या होता है, कॉट, उसको कैप्चर कर लिया, उसको कॉट कर लिया, एक मॉन्स्टर्स डर ने कॉट कर लिया उसको. एंड हिज हार्ट स्टूड, उसका हार्ट स्टिल हो गया, जैसे कि हार्ट में कुछ भी मूवमेंट बंद हो गया. ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट की बात थी. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, क्योंकि बर्ड्स को ये गॉड गिफ्ट है कि वो अपने आप ही फ्लाई करते हैं, है ना. तो उसने जैसे ही उसने थोड़ी देर बाद ही उसके विंग्स अपने आप ही फैल गए और वो हवा में उड़ने लगा, बिकॉज इट इज़ ऑटोमेटिक, इट इज़ समथिंग विच दे आर नो बाई बर्थ. The next moment he felt his wings spread outward. The wind rushed against his breast feathers and then under his stomach. और हवा जैसे ही उसके विंग्स फैले वैसे ही हवा ने नीचे से आके प्रेशर बना लिया और उसको विंड जो था वो उसको अपने ब्रेस्ट फेदर्स में और स्टमक में फील होने लगा. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप ऑफ द विंग कटिंग थ्रू द एयर. और उसको अपने महसूस हो रहा था कि जो उसके विंग्स हैं वो हवा को काट रहे हैं. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सीधा सर के बल नीचे नहीं जा रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, अब वो एक जैसे पतंग लहराती है ना, ऐसे वो हवा में सोर कर रहा था. व्हाट डू यू मीन बाय सोरिंग, यानी कि फ्लाइंग अपवर्ड. सोरिंग माने क्या होता है, फ्लाइंग अपवर्ड. तो वो धीमे धीमे अपवर्ड को फ्लाई कर रहा था. एंड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर लगना बंद हो गया क्योंकि वो सीधा एकदम तेज़ी से नीचे नहीं जा रहा था, बल्कि वो फ्लाई करता हुआ धीमे धीमे नीचे जा रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे ऐसे चक्कर से आए. डिजी माने थोड़ा सा उसका दिमाग घूमने लगा. गिडीनेस, गिडी के लिए उसके दूसरा वर्ड क्या है, GIDDY, गिडी, ठीक है. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस, उसने फिर से अपने विंग्स को एक बार मूव किया अप डाउन. एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और फिर वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा, यानी कि उसको फ्लाई करना आ गया. गा 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 गाउ कूल आ. हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके बगल से स्वीप करके निकली. स्वीप माने क्या होता है, उड़ती हुई है. उसकी माँ जो तेज़ी से उसके बगल से स्वीप करती हुई गई. फिर क्या हुआ, her wings making a loud noise, he answered with her another scream, उसने भी जवाब दिया अपनी माँ को, उसने उसने जवाब दिया स्क्रीम के साथ. Then his father flew over him screaming, फिर उसके फादर भी आ गए. He saw his 2 brother and sister all flying around him, सब उसके आसपास घूम रहे थे. Curveting and banking, कवर्टिंग माने क्या होता है, कवर्ट माने टेढ़े होके, है ना, एक ऐसे घूम घूम के, यानी टू मेक स्विफ्ट मूवमेंट्स. ये एक सब स्विफ्ट मूवमेंट्स हैं कि उसके पेरेंट्स भी एक स्विफ्ट मूवमेंट करने लगे. ओके, तो कवर्टिंग मीन्स स्विफ्ट मूवमेंट, इसको आप नोट कर सकते हैं इस वर्ड को, स्विफ्ट. ओके, देन फिर क्या हुआ उसके बाद, ही
ओके फिर आप देखते हैं कि गा 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 ही आंसर्ड विद अनदर स्क्रीम हिज फादर ऑल्सो ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर अराउंडिंग कवर्टिंग. कवर्टिंग माने स्विफ्ट मूवमेंट. कवर्टिंग का मतलब क्या होता है? स्विफ्ट मूवमेंट. इसको आप लिख लीजिए, स्विफ्ट मूवमेंट. ओके ये वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मूवमेंट्स को शो कर रहा है ना उसके. एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, यानी कि देखो क्या क्या कर रहे थे वो लोग, स्विफ्टली मूव कर रहे थे. बैंकिंग माने किनारे पे, सोरिंग माने फ्लाइंग इन एयर, और डाइविंग माने डाइव करना. तो कितनी मूवमेंट्स थी. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू ड्राइव एंड सॉर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली. और वो मुंह से अपने बहुत ही कर्कश आवाज़ें मुंह से निकाल रहा था क्योंकि उसको अब कभी लग ही नहीं रहा था कि उसको तैरना नहीं आता था. ही वॉज नेवर द सी नाउ, अब नियर द सी नाउ, और वो समुद्र के पास आ गया. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. अब वो बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल ऊपर था, सामने था उसका फेस. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और उसने देखा कि एक ग्रीन सी, पूरा एक हरे रंग की सी है, विथ लिटिल रिजेस, और उसमें छोटे छोटे रिजेस हैं. ठीक है ना. रिजेस माने क्या होता है? माउंटेन रेंजेस. व्हाट डू यू मीन बाय रिजेस? माउंटेन रेंजेस. उसमें छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस हैं. ठीक है, माउंटेन रेंजेस, RANGES. तो उसने देखा कि उसमें वहाँ छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस भी थी. फिर एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसने अपनी चोंच को साइड में किया. एंड काउड इम्यूजली. इम्यूजडली मीन्स इंजॉय करते. ही वॉज इंजॉइंग. नाउ व्हाट ही वॉज डूइंग? ही वॉज इंजॉइंग. हिज ब्रदर्स, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड हिम. उसने देखा कि उसके भाई बहन माँ बाप सब उस ग्रीन फ्लोर पे, फ्लोर माने क्या होता है? फर्श, है ना. तो वो उस पे वो जो फर्श था उसको वो उसके ऊपर उसने देखा कि उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन सब वहाँ पे फ्लोर पे लैंड हो गए. तो उसने क्या सोचा कि ये समुद्र नहीं है बल्कि क्या है, ये कोई ज़मीन है हरे रंग की. सो दे व बैकनिंग टू हिम, और वो उसको बैकन कर रहे थे, यानी कि उसको बार बार सिग्नल कर रहे थे. बैकनिंग माने क्या होता है? सिग्नलिंग. दे वर सिग्नलिंग हिम, उसको वो सिग्नल कर रहे थे. SIGNAL. उसको सिग्नल दे रहे थे बार बार कि आओ, तुम भी आओ, नीचे उतरो, है ना. लेकिन क्या हो रहा था कि वो तो बहुत डर रहा था क्योंकि अब वो उसके लिए समुद्र भी नई चीज़ थी, पहली बार वो समुद्र के पास जा रहा था. तो फिर वो सीधा ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने अपनी लेग्स को नीचे करा. जैसे एक प्लेन फ्लाई वो करता है ना, लैंड करता है तो सबसे पहले अपने पैर निकाल के ज़मीन पे लगाता है. तो ऐसे ही वो भी जो हवा में उड़ रहा था, उसके सब लोग सिग्नल कर रहे थे, बुला रहे थे उसको श्रील आवाज़ में, अपनी कर्कश आवाज़ में. तो उसने भी अपने पैरों को ड्रॉप किया. उसने सोचा कि ये ग्रीन सी जो है वो फ्लोर है, एक फ़र्श है. तो उसने सोचा मैं भी यहाँ पर लैंड कर लूँ. तो जैसे ही हिज लैंग सैंक इनटू इट, लेकिन उसकी टांगें उसके अंदर सैंक हो गई, डूब गई. अब वो फिर से डर गया. ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन. उस जोर से चिल्लाया क्योंकि उसने सोचा था कि ये ज़मीन है, उस पर लैंड करेगा वो, लेकिन उसके तो पैर पानी के अंदर डूब गए. तो वो जोर से डर के चिल्लाया. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और उसने कोशिश की फिर से मैं अपने उड़ जाऊँ, फ्लैप करने लगा विंग्स को कि हवा में उड़ जाऊँ. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. लेकिन वो बहुत थका हुआ था और उसको भूख भी बहुत लग रही थी, उसकी वजह से कमजोरी भी लग रही थी उसको, वो उड़ नहीं सका. एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड. वो बहुत टायर्ड हो गया और उसने क्या किया? बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से वो बहुत टायर्ड हो गया था. हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी, उसके पैर जो थे वो ग्रीन सी में डूब चुके थे. एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसकी स्टमक, बेली मीन स्टमक, उसकी टच करने लगी. एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर वो आगे डूब नहीं रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और उसने देखा कि वो अब वो फ्लोट कर रहा था, वो तैरना भी सीख गया था. अभी तक फ्लाई करना सीखा उसने, उसके बाद उसने तैरना भी सीखा. और उसने देखा कि उसकी फैमिली के लोग स्क्रीम कर रहे थे, यानी चिल्ला रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ़ कर रहे थे. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी फैमिली जो उसको ऑफर कर रही थी स्क्रैप्स माने पीसेस. स्क्रैप्स माने क्या होता है? पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े मछली के, डॉग फिश के, उसकी फैमिली उसको दे रही थी कि लो खा लो तुम. ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आज इस बर्ड ने, सी गर्ल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को अकम्प्लिश किया. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ सी गर्ल हैज़ अकम्प्लिश्ड हिज फर्स्ट फ्लाइट.
तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें है तो कुछ भी नहीं, ईजी है, लेकिन इसको आप इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से कॉम्प्रिहेंशंस जरूर आते हैं. तो सबसे पहले आपको यू शुड नो दैट फियर इन द हार्ट ऑफ द गर्ल, सी गर्ल. सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज़ फियर इन द हार्ट ऑफ सी गर्ल. ठीक है, इसको हम पॉइंट्स में इसलिए लिख लेंगे इस चैप्टर को, ताकि हमको रिवीजन के समय बहुत आराम रहेगा. बोर्ड एग्जाम जब हमारा होता है तो हमको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो पहला पॉइंट हमारा होगा फियर इन द हार्ट ऑफ सीगल. तो आप इसमें बताएंगे कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, द बेबी सीगल अपीयरिंग लाइक अ ह्यूमन बेबी हु इज़ अफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप. ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिज मदर टू ब्रिंग फूड फॉर हिम. तो बार बार अपनी माँ को कह रहा है ना, मेरे लिए खाना लाओ, आवाज़ मार मार के. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन विच वी विल कम टू नो हाउ सी गर्ल लर्न टू फ्लाई. सो देर इज़ फियर इन हिज माइंड, है ना. हिज ब्रदर सिस्टर ऑल हैव ऑलरेडी फ्लोन अवे. हिज पेरेंट्स आर ट्राइंग द बेस्ट टू इनकरेज हिम फॉर फ्लाइंग, but all their tries are just going to waste. He tried to fly, but the fear stopped him, so he could not believe on his wings. His parents are scolding him, threatening him that he would die of hunger if he did not fly. So this is the part. Then second point we can take is that his brothers and sisters, they have become perfect. Brothers and sisters have become perfect. They have become perfect. You can note this point. So you can explain also. He watched his from the ledge that his brother sister, they are flying with their parents and they are being taught how to dive to get fish. They are all getting perfect in skimming and all. So ठीक है. Then third is mother's method. Third point is mother's method. It was her mother's method which made him fly. What was the mother's method? The seagull was very hungry. It was visible shiny day. The seagull pretended to sleep and no one saw him. Only his mother was looking at him. He was tearing a piece of fish. The mother was tearing piece of fish. He made a sound to get this piece of fish. Young seagull was very hungry. So now this is the third point. Now we will come over to the fourth point. Now what is the fourth point? Fourth point we can say the seagull and the food. Seagull and the food. This is the fourth important point. Seagull and the food. How? Now you can see the seagull could not control himself due to hunger. He dived at the food, and when he dived at the food, he fell from the ledge. And he made a loud screaming sound. His mother swooped up, and thus he made his first flight. Okay. So now fifth point can be first flight of the seagull. Flight of the seagull. What was the flight of the seagull? Okay. So you can say after jumping, he was very much afraid, and then the next movement, his wings spread, and he started flying, and he was no more going down straight headway. And the last, his experience, and his last one we can say all about his family, है ना. Help, support from family, how family supported him, and how they made him. Then when he went into the ocean, he did not drown over there, and there also he started learning how to float. So this is all about this lesson. So you should remember and write down the important points. I hope the lesson is clear to you. Tomorrow we will do the question answers. Thank you. Have a nice day.